ਧੰਜਲ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ 11ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਜਾਂ ਵਰਕ ਐਂਡ ਐਨਰਜੀ। हाँ जी बच्चे, सब तो पहला देखो वर्क ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। पहला देखो डेफिनेशन। वर्क is said to be done when a force acts on an object and the object is displaced in the direction of force। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਉੱਪਰ बल लगाते हाँ तो वह वस्तु अपनी जगह तो लगाए गए बल की दिशा वाल विस्थापित होवे तां असीं कहांगे कि कार्य किया गया है। The work done on an object is the product of the force applied and the displacement। तो बच्चे कार्य जो है वो किस चीज से निर्भर करता है? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चे कार्य किस ते निर्भर करेगा? लगाए गए बल उत्ते अते बल लगाउण दे नाल जो वस्तु दे विच विस्थापन होया है उस उपर। इसलिए असीं कार्य दा जो फार्मूला है वो असीं किस तरह लिख सकते हैं? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जां कीता गया कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। इस इस तरह इस फॉर्मूले नाल दर्शा सकते हैं। W इज इक्वल टू F इंटू S, जिथे W की है बच्चे कीता गया कार्य, F की है लगाया गया बल अते S की है विस्थापन जां डिस्प्लेसमेंट। द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। तो बच्चे कार्य का जो यूनिट है, कार्य नूं असीं बच्चे किस यूनिट विच मापते हाँ? वो की है? जूल। इस नूं असीं J दे नाल प्रदर्शित करते हैं। इफ F इज 1 न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट इज 1 मीटर then the work done is 1 न्यूटन मीटर और 1 जूल। तो बच्चे जे असीं किसी वस्तु उपर 1 न्यूटन का बल लगाते हाँ ਅਤੇ उस बल ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ वस्तु 1 मीटर तक विस्थापित होती है ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ? 1 न्यूटन मीटर ਦੇ बराबर ਜਾਂ 1 जूल ਦੇ बराबर। So 1 joule is the amount of work done when a force of 1 Newton displaces an object by 1 meter। तो बच्चे जूल की होया? जूल वो किया गया कार्य है जदों किसी वस्तु उपर असी 1 न्यूटन का बल लगाते हाँ अते वो वस्तु 1 मीटर का विस्थापन करती है। एग्जाम्पल, इफ अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन acts on an object and it is displaced through 2 meter in the direction of the force, then work done is 5 Newton into 2 meter is equal to 10 Newton meter or 10 Joule। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਉੱਪਰ 5 ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਬਲ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵਸਤੂ 2 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ कि किया गया कार्य कितना होएगा? वो होएगा 10 न्यूटन मीटर जां 10 जूल। The work done by a force may be positive or negative। तो बच्चे लगाया गया जो बल है उस द्वारा जो किया गया कार्य है वह धनात्मक भी हो सकता है अते ऋणात्मक भी हो सकता है। The work done by a force is positive if the force and displacement are in the same direction।
ਤਾਂ ਬੱਚੇ बल द्वारा जो किया गया कार्य है वह धनात्मक कदों होएगा जदों असी एक दिशा विच बल लगा रहे हाँ ते उस बल दे नाल वस्तु विच जो विस्थापन है वह भी बल की दिशा दे विच ही हो रहा है, तां असी कहांगे कि किया गया जो कार्य है वह की है धनात्मक। The work done by a force is negative if the force and displacement are in the opposite direction। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਰਜ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ऋणात्मक ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਸਤੂ ਉੱਪਰ ਬਲ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵਸਤੂ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸਥਾਪਨ ਹੈ ਉਹ ਬਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ऋणात्मक। The work done by a force is zero if there is no displacement। ਬੱਚੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਬਲ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹ ਵਸਤੂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਸ ਵਸਤੂ ਵਿੱਚ ਬਲ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ कि किया गया कार्य है जो है वो की है सिफर है। The work done by a force is zero if the force is perpendicular to the displacement। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਰਜ ਸਿਫਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਉੱਤੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਬਲ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। हाँ जी, अगे आ गया बच्चे एग्जाम्पल देखो। When we lift an object, the object moves upward in the direction of force। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਸਤੂ ਜੋ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬਲ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵਸਤੂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। Here the work done is positive। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬਲ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਬਲ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਪਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਧਨਾਤਮਕ। ਬਟ देयर इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग डाउनवर्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट। पर उस वस्तु उपर एक धरती द्वारा बल भी लगाया जा रहा है जिसनों असीं फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हाँ। तो यह बल जो है बच्चे वह वस्तु की उपर वाल की गति के विरुद्ध हेठा वाल नूं लग रहा है। द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज नैगेटिव। इसलिए धरती द्वारा जो किया गया कार्य है वह की है बच्चे ऋणात्मक। एग्जाम्पल, a porter lifts a luggage of 15 kilogram from the ground and puts it on his head 1.5 meter above the ground। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਨੇ ਆ। ਇਸ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਲੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 15 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰੀ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 1.5 ਮੀਟਰ ऊपर चुक के अपने सिर ऊपर रखता है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज। तां कुली द्वारा भारे समान नूं चक्कण दे लई जो किया गया कार्य है वो असीं पता करना है। तां देखो इहदा जवाब देखो बच्चे। मास ऑफ लगेज m इज इक्वल टू 15 किलोग्राम। तां बच्चे जो भार है जो कुली ने भार अपने सिर ते चुक्या है उसका पुंज कितना है m कितना है 15 किलोग्राम। तो भार धरती तो उपर कितना विस्थापित होया है तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई 1.5 मीटर। ते एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो धरती द्वारा जो धरती का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कितना बच्चे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ते हुण सानू पता है बच्चे कि किया गया कार्य किस बराबर हुंदा है वर्क डन
W इज इक्वल टू F इंटू S। इतने बच्चे W की है किया गया कार्य, F की है बल या लगाया गया बल, गुणा S की है डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। तो इस दे विच असीं जदों अपने जो रकम दी है सानू भरांगे तो F कितना है 15 किलोग्राम, S कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू विस्थापन कितना है 1.5 मीटर या डिस्प्लेसमेंट कितने बच्चे 1.5 मीटर। तो इस तरह जो असीं इस दे विच पूरे रकम भरांगे तो साडा जवाब क्या आ जाएगा बच्चे 225 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 225 न्यूटन मीटर या 225 जूल्स दे बराबर। तो बच्चे भारे समान नूं चक्कण दे लई कीता गया कार्य कितना कितना होगा अपना 225 जूल या 225 न्यूटन मीटर। हाँ जी बच्चे, अगला टॉपिक है अपना एनर्जी या ऊर्जा। द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क। तो बच्चे ऊर्जा की है, ऊर्जा की है किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता नूं ऊर्जा कहा जाता है। द यूनिट ऑफ एनर्जी इज सेम एज दैट ऑफ वर्क दैट इज जूल। तो बच्चे ऊर्जा का जो मात्रक है वही मात्रक है जो असी कार्य के लिए वरतते हैं, वो की है जूल। 1 जूल इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क। तो बच्चे 1 जूल की है, 1 जूल वह ऊर्जा है जो सानू 1 जूल कार्य करने के लिए चाहिए है। 1000 जूल इज इक्वल टू 1 किलो जूल। तो बच्चे 1000 जूल है ये 1 किलो जूल के बराबर होता है। देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो बच्चे ऊर्जा दियां वख-वख किस्मां हन, जिस तरह की हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलैक्ट्रिकल एनर्जी, कैमिकल एनर्जी, मकैनिकल एनर्जी। तो बच्चे मकैनिकल एनर्जी की होंदी है, पोटेंशियल एनर्जी जां स्थितिज ऊर्जा अते गतिज ऊर्जा का जोड़ होंदी है। तो मैकेनिकल एनर्जी किहदे बराबर होंदी है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, जां मैकेनिकल एनर्जी किहदे बराबर होंदी है स्थितिज ऊर्जा जमा गतिज ऊर्जा के बराबर। तो बच्चे अगला टॉपिक आ गया अपना काइनेटिक एनर्जी, जां इसनूं असीं पंजाबी दे विच कहने आ गतिज ऊर्जा। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट is the energy possessed by the object due to its motion। तो बच्चे किसी वस्तु की गति कारण जो ऊर्जा पैदा होती है उस ऊर्जा नूं असीं की कहने गतिज ऊर्जा जां काइनेटिक एनर्जी। ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट्स पोजेस काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चे सारियां जो चलण वालियां वस्तुआं हन उन्हां सारियां दे विच गतिज ऊर्जा होंदी है। अ फॉलोइंग कोकोनट, a speeding car, a flying aircraft, flowing water, blowing wind, a running athlete etc. possess kinetic energy। तो जिस तरह बच्चे असीं पहला भी किया है कि जो गति कर रही वस्तुआं हैं उन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ की हैगी गतिज ऊर्जा होंदी है। जिस तरह की कोई गिर रहा जो कोकोनट है, जां कोई कार है जो तेजी नाल चल रही है, जां कोई एयरक्राफ्ट है, जां कोई जहाज है जो उड़ रहा है, जां पानी जो वह रहा है, जां हवा जो चल रही है, जां कोई एथलीट जां खिडारी जो भज रहा है। तो इन्हां सारिਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ऊर्जा होवेगी वो किहड़ी होवेगी गतिज ऊर्जा। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन इट्स स्पीड। तो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा जो है वो बच्चे किस ते निर्भर करती है उस वस्तु की रफ्तार ते या उस वस्तु की स्पीड ते। एन ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टर हैज मोर काइनेटिक एनर्जी देन एन ऑब्जेक्ट मूविंग स्लोअर। तो बच्चे जिहड़ी वस्तु तेजी नाल चल रही है उसकी ज्यादा गतिज ऊर्जा होगी, अते जो वस्तु हौली चल रही है उसकी गतिज ऊर्जा जो है वो घट होगी। द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट of mass m
and moving with uniform velocity v is ek is equal to 1 by 2 mv square। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਜਿਸ ਦਾ ਪੁੰਜ m ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਵੇਗ v ਦੇ ਨਾਲ ਗਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗਤਿਜ ਊਰਜਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ ek। ਇੱਥੇ k ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਜਾਂ ਗਤਿਜ ਊਰਜਾ। E ਕੀ ਹੈ એનર્ਜੀ, k ਕੀ ਹੈ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਜਾਂ ਗਤਿਜ ਊਰਜਾ, ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ 1/2 mv ਸਕੁਅਰ। ਇੱਥੇ m ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਮਾਸ ਜਾਂ ਵਸਤੂ ਦਾ ਪੁੰਜ, v ਕੀ ਹੈ ਵੇਗ ਜਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਤਾਂ ਗਤਿਜ ਊਰਜਾ ਦਾ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ek is equal to 1/2 mv ਸਕੁਅਰ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ एग्जाम्पल ਜਾਂ ਉਦਾਹਰਨ, an object of mass 15 kilogram is moving with a uniform velocity of 4 meter per second. What is the kinetic energy possessed by the object? ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਸ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪੁੰਜ 15 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 4 ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵੇਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਗਤਿਜ ਊਰਜਾ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਖੋ, ਮਾਸ ਆਫ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ, ਉਸ ਵਸਤੂ ਦਾ ਪੁੰਜ m ਕਿੰਨਾ ਹੈ 15 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ, ਉਸ ਵਸਤੂ ਦਾ ਵੇਗ v ਕਿੰਨਾ ਹੈ 4 ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਤਿਜ ਊਰਜਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ek ਬਰਾਬਰ 1/2 mv ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮਾਂ ਭਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 1/2 into 15 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ into 4 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ into 4 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ v ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ 4 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ into 4 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਜੋ ਹੈ ਗਤਿਜ ਊਰਜਾ ਜੋ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 120 ਜੂਲ ਜਾਂ 120 ਜੂਲ। The kinetic energy of the object is 120 ਜੂਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਜੋ ਗਤਿਜ ਊਰਜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ 120 ਜੂਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਜਾਂ ਸਥਿਤਿਜ ਊਰਜਾ। The potential energy of an object is the energy possessed by the object due to its position or shape। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਜਾਂ ਸਥਿਤਿਜ ਊਰਜਾ। Example, if a rubber band is stretched and then released, it regains its original position. When the rubber band is stretched, energy is transferred to it and stored as potential energy। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਬੜ ਬੈਂਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਿੱਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਰਬੜ ਬੈਂਡ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਊਰਜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਥਾਨਾਂਤਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਊਰਜਾ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਰਬੜ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤਿਜ ਊਰਜਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਬੜ ਬੈਂਡ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਥਿਤਿਜ ਊਰਜਾ ਵਾਪਸ ਫੇਰ ਗਤਿਜ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਬੜ ਬੈਂਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। If we wind the key of a toy car and place it on the ground, it moves. When we wind the key of the car, energy is transferred to the spring inside and stored as potential energy। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਿਡੌਣਾ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਾਬੀ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚਾਬੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਬੀ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚਾਬੀ ਭਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਦੇ ਸਪਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ
ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਥਾਨਾਂਤरण ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਊਰਜਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰ ਦੇ ਸਪਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤਿਜ ਊਰਜਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਨੂੰ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਥਿਤਿਜ ਊਰਜਾ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਗਤਿਜ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੋ ਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਰਿੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। If we lift an object to a height and release it, it falls down. When the object is lifted, energy is transferred to it and stored as potential energy. ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਸਤੂ ਜੋ ਹੈ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਥਿਤਿਜ ਊਰਜਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਥਿਤਿਜ ਊਰਜਾ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਗਤਿਜ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵਸਤੂ ਵਾਪਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Potential energy of an object at a height, ਕਿਸੇ ਉਚਾਈ ਉੱਤੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਸਥਿਤਿਜ ਊਰਜਾ। When an object is raised to a height, its energy increases because work is done on it against gravity. ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਊਰਜਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੁਰੂਤਵਾਕਰਸ਼ਣ ਬਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। The energy present in such an object is called gravitational potential energy. ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ, ਗੁਰੂਤਵਾ ਸਥਿਤਿਜ ਊਰਜਾ। If an object of mass m is raised to a height h from the ground, the force required to raise the object is equal to the weight of the object mg. ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ m ਪੁੰਜ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਚਾਈ h ਤੱਕ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਉਸ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਬਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਬਲ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦੇ ਭਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਹੈ mg। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ work done is equal to force into displacement। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਰਜ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਬਲ ਗੁਣਾ ਵਿਸਥਾਪਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ, W equal to mg, ਜੋ ਬਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਆਗਾ, mg, ਜਾਂ ਵਸਤੂ ਦੇ ਭਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ mg into h। h ਕੀ ਹੋਗਾ ਬੱਚੇ, ਉਚਾਈ। ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਰਜ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, mgh। potential energy gained by the object, EP is equal to mgh। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ m ਪੁੰਜ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ h ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਬਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਉਸ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਜੋ ਬਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦੇ ਭਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਜੋ ਹੈ ਜਾਂ ਸਥਿਤਿਜ ਊਰਜਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਵਸਤੂ ਦੇ ਭਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਤਾਂ EP ਜਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ mgh ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, find the energy possessed by an object of mass 10 kg when it is at a height of 6 meter above the ground, given g is equal to 9.8 meter per second square। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਸ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਊਰਜਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪੁੰਜ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 10 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 6 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਸਾਨੂੰ
जी का मान जो दिता गया है वो कितना बच्चे 9.8 मीटर पर सैकेंड स्क्वायर। तो इत्थे असीं बच्चे स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला लगावांगे EP इज टू mgh। तो बच्चे mg की आ गया, m की आ गया इत्थे वस्तु का पुंज जो कि है 10 किलोग्राम, g की आ गया बच्चे धरती का गुरुत्वाकर्षण बल 9.8 मीटर पर सैकेंड स्क्वायर, तो h की है उचाई, ये कितना आ गया 6 मीटर। तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा कितनी कितनी लगेगी 588 जूल के बराबर। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का रूपांतरण। द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो बच्चे ऊर्जा के एक रूप तो दूसरे रूप में बदलने की क्रिया की कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी या ऊर्जा का रूपांतरण। When energy is converted from one form into another, the total energy always remains the same। तो बच्चे जदों ऊर्जा एक रूप तो दूसरे रूप में बदलती है तो कुल ऊर्जा जो है वो स्थाई रहती है। इसनों असीं की कहने लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ एनर्जी या ऊर्जा का सुरक्षण नियम। तो हुण बच्चे देखो डेफिनेशन की है law of conservation of energy। The law of conservation of energy states that energy can only be converted from one form into another. It can neither be created nor destroyed. The total energy before and after the transformation remains the same। तो बच्चे ऊर्जा सुरक्षण का जो नियम है एक की कहता है कि जदों ऊर्जा अपने एक रूप तो दूसरे रूप में बदलती है तो ना तो नवी ऊर्जा पैदा होती है ते ना ऊर्जा नष्ट होती है। तो कुल ऊर्जा जो है जो पहला जो ऊर्जा रूपांतरण तो पहला सी अते उसका रूप बदलने तो बाद जो कुल ऊर्जा है वह सेम रहती है, वह स्थिर रहती है। एग्जाम्पल, लेट एन ऑब्जेक्ट बी अलाउड टू फॉल फ्रीली from a height। At the start, the potential energy is more. As it falls down, the potential energy changes into kinetic energy. The potential energy decreases and the kinetic energy increases. When the object is about to reach the ground, the kinetic energy is the largest and the potential energy is the least. But the sum of potential energy and kinetic energy is the same at all points। तो बच्चे देखो उदाहरण है कि जेकर कोई वस्तु किसी ऊंचाई तो हेठा वल गिर रही है तो जिथों वस्तु ने गिरना शुरू किया उथे उस वस्तु की जो स्थितिज ऊर्जा है वो ज्यादा है, तो जदों वस्तु हेठा गिरना शुरू होती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा जो है वह गतिज ऊर्जा दे विच बदलना शुरू हो जाती है। ज्यों ज्यों वस्तु उचाई तो हेठा वाल डिगदी है तो उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा विच कमी आउंदी जांदी है अते उसकी गतिज ऊर्जा विच वाधा हुंदा जांदा है। ते जदों वस्तु धरती ते गिरन वाली हुंदी है तो उस वक्त वस्तु की जो गतिज ऊर्जा है वह ज़्यादा हुंदी है अते उसकी जो स्थितिज ऊर्जा हुंदी है वो बहुत घट हुंदी है। पर इन्हां दोनों ऊर्जा का जे असीं जोड़ देख लीए पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा अते गतिज ऊर्जा जो कनेटिक एनर्जी है गतिज ऊर्जा है, इन्हां दोनों का जे असीं किसी भी स्थिति दे विच असीं इन्हां दोनों का जोड़ देखिए तो हमेशा ही की रहूगा सेम रहूगा, हमेशा ही स्थिर रहूगा। सो पोटेंशियल एनर्जी प्लस कनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसलिए स्थितिज ऊर्जा अते गतिज ऊर्जा जो है ये हमेशा ही की हैगी इन्हां दा जोड़ हमेशा ही की रहेगा बच्चे स्थिर रहेगा। द सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो बच्चे स्थितिज ऊर्जा अते गतिज ऊर्जा दे जोड़ नूं असीं की कहने बच्चे मैकेनिकल एनर्जी जां इस नूं असीं
होर की नाम दिंदे आ इस नूं असीं की कहने आंगे यांत्रिक ऊर्जा जां मैकेनिकल एनर्जी। हाँ जी बच्चे, साडा अगला टॉपिक आ गया रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर जां कार्य करन दी दर, शक्ति। पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो बच्चे शक्ति की है कार्य करन दी दर। इफ W इज द वर्क डन इन टाइम T, then power is equal to work done by time taken और P is equal to W by T। तो बच्चे जे असी दिते हुए समय T दे विच कार्य W करते हाँ तो कितनी शक्ति पैदा हुई। पावर या शक्ति किहदे बराबर है बच्चे, वर्क डन या किया गया कार्य बटे टाइम टेकन या लग्या समा। तो इसलिए फार्मूला की है शक्ति का, फार्मूला बच्चे की है P is equal to W by T। The unit of power is watt। तो बच्चे शक्ति का जो यूनिट है वो की है, या शक्ति का जो मात्रक है वो की है वाट। 1 watt is the power of an agent which does work at the rate of 1 joule per second। तो बच्चे 1 वाट की है, 1 वाट उस एजेंट की शक्ति है जो 1 जूल कार्य करता है 1 सेकंड दे विच। 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड। तो 1 वाट जो है 1 जूल कार्य करता है 1 सेकंड दे विच, और 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड। तो आगे होर यूनिट देखो बच्चे, 1 किलोवाट जो है 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट्स। 1 kW और 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट्स। W की है जे वाट्स, KW की है बच्चे किलोवाट। तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 जूल्स पर सेकंड दे बराबर। हाँ जी बच्चे, अगला टॉपिक है कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर या ऊर्जा दी कमर्शियल मात्रक। द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर। तो बच्चे ऊर्जा का जो कमर्शियल मात्रक है वो की है किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट आवर इज द एनर्जी यूज्ड इन 1 आवर एट द रेट ऑफ 1 किलोवाट और 1000 जूल्स पर सेकंड। तो बच्चे मान लो असी 1 किलोवाट की मशीन नूं 1 घंटे लिए चलाते हाँ, तो उस मशीन दे लई जो ऊर्जा खपत होगी वो कितनी होगी 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 किलोवाट इंटू 1 आवर इज इक्वल टू 1000 वाट। हुण 1 किलोवाट दे विच बच्चे किन्ने वाट होंदे ने, 1000 वाट होंदे ने। तो असीं 1 किलोवाट नूं 1000 वाट भी लिख सकते हैं इंटू 1 आवर इज इक्वल टू 1000 वाट इंटू 3600 सैकेंड्स। तो बच्चे 3600 सैकेंड्स कित्थों आया। असी जानते हाँ कि 1 घंटे दे विच की है 3600 सैकेंड्स होंदे हन। तो इसलिए जे असी इस नूं हल करांगे तो असी देख सकते हैं कि 1 किलोवाट आवर जां 1 किलोवाट घंटा किस दे बराबर होएगा 3600000 जूल्स दे बराबर, जां 1 किलोवाट घंटा या 1 किलोवाट आवर किस दे बराबर होगा बच्चे 3.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 जूल्स दे बराबर। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड इन होम्स एंड इंडस्ट्रीज आर एक्सप्रैस्ड इन किलोवाट आवर। तो बच्चे बिजली ऊर्जा जो घरां दे विच जां वड्डियां वड्डियां इंडस्ट्री दे विच जो वरती जाती है उस नूं असीं किलोवाट घंटे दे विच लिखते हाँ। द इलैक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड ड्यूरिंग अ मंथ इज एक्सप्रैस्ड इन यूनिट्स। तो बच्चे बिजली ऊर्जा जो पूरे महीने के दौरान वरती गई है उस नूं असीं किस विच लिखते हाँ, यूनिट्स दे विच। हेयर 1 यूनिट मीनस 1 किलोवाट आवर। तो इत्थे बच्चे 1 यूनिट जो है उसका की मतलब होया, 1 यूनिट का मतलब होया 1 किलोवाट घंटा। तो बच्चे मैनू उम्मीद है कि तुहानू साडा अज दा ये टॉपिक समझ आ गया होवेगा। जे तुहानू साडा अज दा ये लैक्चर चंगा लग्या
ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।